Hello students. So this is our first video. This is my first video for the class 11th computer science, and in this video we will only see what is our syllabus of class 11th computer science, and for that I will show you here one file. So this is the syllabus file. I will share this file in the WhatsApp group with you. So you can see in this syllabus, this is the revised syllabus. In CBSE, on CBSE site you may have two different syllabus, but this one is revised due to pandemic COVID-19. CBSE has reduced the syllabus of maximum subjects, and one whose syllabus is reduced was of. So in this syllabus you can see there are 3 units in your syllabus. One is computer systems and organization, another is computational thinking and programming, and third one is society, law and ethics. You will be having your final exam of marks 70, and there will be a practical exam of marks 30 also. So your total marks of computer science will be of 70 plus 30, that is 100 marks. So coming to the unit 1, here is unit 1, computer systems and organization. In this unit you will see what is a computer, or there will be a theoretical questions related with this unit. So in this unit you will see how many types of computers are developed till date, or generations of computers, as well as some basic units of computer system, that is control unit, memory unit, and arithmetic logical unit, etc. In this unit you will be seeing some new thing, that is Boolean logic and number system, that you have not may not be listen about it earlier. So in class 11th you will be able to know what is Boolean logic and what is number system. This topic involves some kind of questions, like we need to prove some theorems in maths. Just like that, we need to prove some laws in Boolean logic. And in this unit further, there will be a theoretical topic of difference between compiler and interpreter, and there is a little information on operating system. However, the operating system is a vast topic, but you will be having a just introduction of operating system in it. So further in unit 2 means computational thinking and programming. This is your part 1. In class 12th you will see its part 2 also. So in this unit you will see you will be able to understand what is a programming language, and you are specifically having Python programming language in your syllabus. So we will see how a Python program can be made, or what are the other topics that we can learn in Python programming language. So this complete unit involves the programming skill. Your programming skill will be increased in this topic. And next unit is unit 3, society, law and ethics. This is completely theoretical topic.
In this topic you will be understand to know what is cyber safety and what is cyber crime and what are the various terms that involves with the cyber crime or related with the cyber safety. In this unit you will be able to know about IT Act 2000. This is the Indian Information Technology Act that is related with the cyber crime and the punishments related with any cyber crime. So this was the brief introduction of your syllabus that you will be seeing in class 11th in computer science subject. So further we are starting the syllabus today. So for starting the syllabus we will be seeing first our unit 1, and this is the easiest unit of your syllabus. You can see this is related with maximum theory. So first is computer system and organization. For this topic I am using here a soft copy here. I will share this soft file in your WhatsApp group also. So this is a soft copy of some writer book. First is what is computer system. I think you are able to give a definition of computer in being in class 11th. So what is computer here? First we will see a computer is an electronic device. We use electronic with computer, not electrical. We always say a computer is an electronic device. We do not say a computer is an electrical device. No. We need to say a computer is an electronic device that can be programmed to accept data, means input, process it and generate result. Result means output. So अगर हम बात करें कि what is a computer, तो कंप्यूटर की डेफिनेशन यही आती है हमेशा कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है एंड इट एक्सेप्ट द डाटा एंड प्रोसेस इट and results gives the desired output or desired result. Even we can store the desired result also, means we can save that result in our computer. So कंप्यूटर सिस्टम की या कंप्यूटर की इस डेफिनेशन को अगर बहुत मतलब जिनको बड़ा टफ लग रहा है अगर ये लिखना कि दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस इट एंड गिव्स द डिज़ायर्ड आउटपुट, इवन वी कैन स्टोर द रिज़ल्ट, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगी मैं. अब ये बहुत मतलब 3rd और 4th क्लास के बच्चों के लिए रहता है एग्जांपल, बहुत सिंपल सा रहता है. अब एक बात मान के चलते हैं कि अज्यूम करो कि आप हैं कंप्यूटर और योर मम्मी जो हैं आपको वो एक कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं और आपने एक कंप्यूटर बन के उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. तो मान लिया एक दिन आपके मम्मी आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा इधर आओ और कुछ पेस्ट्रीज़ परचेज़ करके लेकर आनी है. तो मम्मी ने क्या देना आपको, अब ये मान के चलना है कि आप कंप्यूटर हैं तो आप अपनी मर्ज़ी नहीं मत चलाएंगे, आपको अपने मम्मी की मर्ज़ी के अकॉर्डिंग ही काम करना है. तो अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझना चाह रहे हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन को हम कैसे याद रख सकते हैं या इजीली बना पाएंगे, तो उसके लिए ये कि आप अज्यूम कीजिए यू आर अ कंप्यूटर एंड योर मम्मी इज़ गोइंग टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू दैट कंप्यूटर, मीन्स टू यू. आपकी मम्मी बुलाते हैं और आपको कहते हैं कि बेटा पेस्ट्री लेकर आओ. तो पेस्ट्री लेकर आने के लिए आपने कहा कि ठीक है मैं लेकर आता हूँ. तो साथ में क्या होगा, पैसे देंगी मम्मी, तो आप पैसे लेकर जाएंगे और फिर इंस्ट्रक्शन आपको ये दी जाएगी कि ये पैसे ले जाओ और पेस्ट्री लेकर आओ वापस. तो बीइंग कंप्यूटर आप क्या करेंगे, आप घर से चलेंगे पैसे लेकर. आपकी मम्मी ने पहले आपको जो पैसा दिया दैट इज़ द डाटा,
जो आपकी मम्मी ने कंप्यूटर को पकड़ाया, मीन्स आपकी पॉकेट में डाला या आपको दिया, मीन्स उन्होंने उस डेटा को क्या करवा दिया, इनपुट करवा दिया। देन कंप्यूटर उस डेटा को लेकर घर से चलता है, मीन्स आप उस पैसे को लेकर घर से चल रहे हैं और फिर घर से जाकर किसी शॉप पे, बेकरी की शॉप पे आप वो पेस्ट्री के लिए ऑर्डर देते हैं कि पेस्ट्री चाहिए, आपको पेस्ट्री मिल जाती है, आपने पेमेंट कर दी, मे भी बदले में आपको कुछ चेंज भी मिले, आप वो चेंज भी लेकर और पेस्ट्री को लेकर भी आप अपने घर वापस आ गए। तो आपने घर से चलकर पेस्ट्री लाकर और घर वापस आने में आपने की है प्रोसेसिंग उस पैसों पर, जो आपको पैसा मिला था, मीन्स द अमाउंट, द प्राइस दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम योर मदर एज अ इनपुट, आपने उस पर प्रोसेसिंग की, घर से गए, दुकान तक गए और फिर वापस अपने घर पर आ गए पेस्ट्री और चेंज जो भी आपके पास बचा उसको लेकर, और फिर आपकी मम्मी को आपने पेस्ट्री का डब्बा पकड़ाया और पैसे जो आपके चेंज आपको वापस मिले थे वो भी दे दिए। तो आपने ये दोनों चीज़ें आपकी मम्मी को एज अ रिज़ल्ट, प्रोसेसिंग के बाद आपने उनको रिज़ल्ट दे दिया, मीन्स उसको कह रहे हैं हम आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया। और फिर अगर इन केस आप घर आए हैं, आपकी मम्मी नहीं है, तो आपने अगर उस पेस्ट्री को फ्रिज के अंदर स्टोर कर दिया है, तो इट मीन्स आपने उसको संभाल के रख दिया, कहीं पे स्टोरेज कर दिया है आपके आउटपुट का, मीन्स जो आप प्रोसेसिंग करने के बाद आपने रिज़ल्ट जनरेट किया, उस रिज़ल्ट को आपने कहीं पे स्टोर करके रख दिया है, ये भी पॉसिबल है। तो अगर इस दौरान आप अपनी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन मतलब यूज़ कर लेते हैं, जैसे रास्ते में आते हुए एक पेस्ट्री खा ली, हल्की सी उंगली से आपने उसको चाट लिया, तो फिर इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर ने अपनी खुद की ऐसी इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी शुरू कर दी है जो कि उसको यूज़र ने नहीं दी थी। इट मीन्स द कंप्यूटर मे बी इन्फेक्टेड विद सम वायरस। ओके, तो आप में वायरस आ गया, मीन्स कंप्यूटर में वायरस आ गया। तो अगर आप इस सारे एग्ज़ाम्पल को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, तो फिर आपको समझ में आएगा कि कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर में इस एग्ज़ाम्पल के अकॉर्डिंग ही 4 मेन काम होते हैं, 4 मेन फंक्शंस। और वो 4 मेन फंक्शन क्या होते हैं? सबसे पहले डाटा इनपुट करवाने का कंप्यूटर के अंदर, जो आपको पैसा मिला वो आपका इनपुट था, और फिर आप घर से गए, प्रोसेसिंग की, कुछ काम किया उस पैसे पे और फिर वापस आ गए पेस्ट्री लेकर, वो आपने आउटपुट दे दिया और फिर आपने उस पेस्ट्री को संभाल के रख लिया, दैट मीन्स स्टोर कर दिया, स्टोरेज हो गई। तो कंप्यूटर भी, कोई भी कंप्यूटर अगर आप यूज़ करना चाहेंगे तो वो कंप्यूटर ये 4 फंक्शंस करता है मेन। और कंप्यूटर की डेफिनेशन में भी हम यही लिखते हैं, अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन बी प्रोग्राम्ड, जिसको हमने प्रोग्राम किया हुआ है, टू एक्सेप्ट डाटा, जिसमें आप एक्सेप्ट करते हो डाटा को, मतलब आप इस डाटा एक्सेप्ट करने की प्रोसेस को बोल रहे हैं कि आपने इनपुट कर दिया, फिर उस इनपुट पर या डाटा पर आपने प्रोसेसिंग की एंड रिज़ल्ट जनरेट कर दिया। रिज़ल्ट मीन्स आउटपुट दे दिया। इवन अगर वो रिज़ल्ट आप कहीं स्टोर करना चाह रहे हैं तो आपने वो स्टोरेज भी कर दिया, मीन्स किसी फ़ाइल को अगर आप सेव करना चाह रहे हैं कहीं पे, तो वो आप वो भी कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ एनी मेमोरी। तो ये था एक बड़ा छोटा सा एग्ज़ाम्पल ये समझाने के लिए कि व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, उसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी पड़ जाए तो आई थिंक नाउ यू कैन अटेम्प्ट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। अब यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है 1.1, इसको बोलते हैं हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब इस ब्लॉक डायग्राम में आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि लेफ़्ट साइड पर है हमारे पास इनपुट डिवाइस एंड राइट साइड पर है आउटपुट डिवाइस। अब बीच में मैंने एक जिसको दिखाया हुआ है सीपीयू के फर्दर 3 पार्ट्स किए हैं, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इवन सीपीयू को हमने अटैच किया है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के साथ भी। ये डायग्राम बहुत सिंपल है, बट फर्स्ट टाइम जब कभी आप इसको देखें तो जिसको अभी तक यही नहीं पता कि इनपुट डिवाइस हम किसे कह रहे हैं, आउटपुट डिवाइस किसे कह रहे हैं, और फर्दर जो सब यूनिट्स किए हैं हमने सीपीयू के वो क्या है,
तो तब तक इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लॉक डायग्राम हेयर। ब्लॉक डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है कंप्यूटर सिस्टम का जिसमें आपने एक पूरे कंप्यूटर सिस्टम की वर्किंग दिखा दी है कि कैसे कौन से पार्ट में क्या काम होता है। अब इस ब्लॉक डायग्राम को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक थिंग्स पर जाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस, व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस। अब उस डिवाइसेस के टाइप्स पर जाने के पहले डिवाइसेस पर जाने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। अभी जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था आपको पेस्ट्री वाला, इन दैट एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर वाज डूइंग 4 मेन थिंग्स। फर्स्ट, इट वाज टेकिंग इनपुट from the user. Second, on that input it was performing some processing, and third, it was producing the result, that means giving the output, and fourth is it was storing the file or storing the result. So there are only 4 functions that a computer can do. One is taking the input from the user, second is applying some processing over that input, and third is giving the result, means producing the output, and final is storage of that file. So depending on these 4 functions, your computer devices are also divided into 4 categories. So what are the types of computer devices? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट्स, यू कैन से कि कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनके कितने टाइप हैं। अब है बहुत सारे टाइप हैं। एक टाइप तो आप ये भी कह सकते हो कि कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं एक हार्डवेयर टाइप का और एक सॉफ्टवेयर टाइप का। अब बात करते हैं कि हार्डवेयर के फर्दर कितने टाइप्स होते हैं। हार्डवेयर के फर्दर 4 टाइप्स हैं, वही 4 टाइप्स जो आप 4 फंक्शंस कर रहे हैं। मीन्स फर्स्ट टाइप है आपका ऐसा हार्डवेयर जो आपके इनपुट करवाने का काम कर रहा है डाटा को, उसको बोल रहे हैं हम इनपुट डिवाइस। फिर सेकंड है ऐसा हार्डवेयर जो आपका प्रोसेसिंग करने का काम कर रहा है उस इनपुट पर, उस डिवाइस को हम बोल देते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस। थर्ड है जो आपको आउटपुट दिखाने का काम कर रहा है, आउटपुट देने का काम कर रहा है, दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। और लास्ट है स्टोरेज डिवाइस। सो इनपुट डिवाइस पे अगर हम बात करें, ऐसा डिवाइस या कंप्यूटर का ऐसा पार्ट, ऐसा हार्डवेयर जो यूज़ किया जा रहा है आपके कंप्यूटर में आपके डाटा को इनपुट करवाने के लिए। अब अगर आप डाटा इनपुट करना चाह रहे हैं अपने डिवाइस, अपने कंप्यूटर में डाटा को, तो वो कैसे पॉसिबल है। मीन्स हम कंप्यूटर में कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं, तो हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में कंप्यूटर पे जब भी काम करते हैं तो हम अपना जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं 2 वे में, इन 2 वेज वी आर गिविंग द इंस्ट्रक्शन। वन इज़ विद द यूज़ ऑफ कीबोर्ड एंड अनदर इज़ विद द यूज़ ऑफ माउस। तो इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स क्या हो गए हमारे पास, माउस एंड कीबोर्ड, जिससे हम अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे पा रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग डिवाइस। अब हमारे डाटा पे जो हमने इनपुट करवाया है उस पर प्रोसेसिंग करने का काम कौन सी डिवाइस कर रही है, उसको बोल रहे हैं हम प्रोसेसिंग डिवाइस, और वो है हमारा CPU। CPU इज़ द ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस इन आवर कंप्यूटर। CPU stands for Central Processing Unit here, फुल फॉर्म है CPU की Central Processing Unit। नेक्स्ट इज़ आउटपुट डिवाइस। आपके कंप्यूटर में सच टाइप ऑफ डिवाइसेस और सच टाइप ऑफ हार्डवेयर और सच टाइप ऑफ पार्ट्स विच आर गिविंग यू द रिज़ल्ट और विच आर गिविंग यू द आउटपुट। तो आउटपुट आपको दिखती कहाँ पर है, आपके कंप्यूटर में हो जो भी कुछ रहा है उसकी आउटपुट सबसे पहले तो आपको आपके मॉनिटर पर दिखती है, जो भी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मीन्स आपको आपका आउटपुट विजिबल हो रहा है जो आप करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट है
स्पीकर से आप अपने कंप्यूटर से कोई भी गाने की आवाज़ में या किसी भी वॉइस MP3 फाइल को आप सुन पाते हैं अपने कंप्यूटर में से। और एक है एग्ज़ाम्पल इसका प्रोजेक्टर। ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, एट्सेट्रा मैं मेंशन करूँगी यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस हैं हमारे पास अवेलेबल। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस। ऐसा डिवाइस जिसमें आप अपनी फ़ाइल को सेव करवा पा रहे हो या स्टोर करवा पा रहे हो, तो वो होती है आपकी मेमोरी। मेमोरी मीन्स अब मेमोरी में आप किस चीज़ में फ़ाइल सेव करवा सकते हो। आपकी रैम, आपने सुना होगा वर्ड व्हाट इज़ रैम। रोम में आपने सुना होगा, ये भी एक मेमोरी है जिसमें हम फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। बट इनकी फर्दर कुछ डिफरेंसेस हैं रैम और रोम में, हम फिर कभी देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क यू मे हैव लिसन अबाउट हार्ड डिस्क। एंड नेक्स्ट द कॉमन मोस्ट इज़ पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी आपका स्टोरेज डिवाइस का एक एग्जांपल है। तो कुछ मेमोरी कार्ड्स अगर आप बात करते हैं फ़ोन के अंदर, तो वो भी आपका स्टोरेज डिवाइस का हिस्सा है। तो ये हमारा था इनपुट डिवाइसेस। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ डिवाइसेस दैट अ कंप्यूटर हैव। योर कंप्यूटर have been made with the combination of these various kind of devices. So what you have done in today's video, you must attempt these questions depending on that topic. First is define computer, another is what are the main parts of computer, third is what are the various types of computer parts, and last one is give at least 2 examples of input device, output device and storage device. So in our next video we will see for the next topic, and you should attempt these questions in your computer science notebook. You can make a new copy or new notebook for a computer science subject. So till then, take care. Bye.